Okay. Hare Krishna. So, in the previous class, we talked about the introduction to Bhagavad Gita, and there were some subtopics like facts about Bhagavad Gita, some generally asked questions about Bhagavad Gita, and some quotations of famous personalities like Oppenheimer, Einstein. So, I hope you read the notes and um, you have gone through the recordings. So we are going to, I'm going to conduct also a Kahoot. So we'll see who has, read all the notes. Okay. So today we are going to see the first chapter of Bhagavad Gita, that is Arjuna Vishada Yoga, setting the scene. Don't draw on the board, please. Please. Okay. So in the first chapter, the name is Arjuna Vishada Yoga. This chapter is summarized in 5 topics that is shown on the in the slide. Okay. So first topic is Dhritarashtra's question to Sanjay. Dhritarashtra has spoken only one verse in the whole 700 chapters. 700 verses of Bhagavad Gita. That is the first verse, Dharma Kshetra Kurukshetre, Samaveta Yutsavaha Mamaka Pandavasyeva Kima Kurvata Sanjaya. Only one verse is there. So his question to Sanjay is very important to set the scene of Bhagavad Gita. And the second topic is Duryodhan compares armies. In I think 2.11 to 12, Duryodhan compares Bhishma Dev to Bhima and all the other, Drishtadyumna, Chekitan, Duryodhan. So he compares all these fighters to the party of Kaurava and Pandavas, just to test the strength and just to test all the powers, all the spirit of his army. उनको देखना था कि मेरी आर्मी का उत्साह है कि नहीं. So just to test that, he compares everyone. And then the third topic is signs of Pandavas victory. When the all the Pandavas blew the conch shell, so it was also considered as a sign of victory because it shattered all the hearts of Kauravas. जो इतना स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस जो थी जब पांडवस ने शंख बजाया, उससे it is described in the Bhagavad Gita, the first chapter, that the hearts of all Kauravas was shattered. And the fourth topic is Arjuna's confusion. When he saw, we are going to discuss these 5 topics. So please, I'm just summarizing these topics which we are going to discuss. So Arjuna's confusion was derived by seeing all the his relatives like Bhishma Pitama and his brothers also, even Duryodhan. तो जब उसने देखा कि मेरे भाई इधर है, मेरे पितामह इधर है, मेरे ग्रैंडफादर इधर है, फिर मेरे गुरु इधर है, सारे तो इधर ही है, तो मैं इनको मारने जा रहा हूँ. So he was confused about what he has to do, what dharma should he perform. Okay. And the fifth topic is Arjuna's reasons not to fight. So he gave 4 tangible reasons to Krishna to convince him that it is not my rightful duty to kill all these my relatives. He is Kshatriya, but he does not want to fight. Don't create disturbances on the board, please. It's not holy.
Wait a second. Okay. So these are the five topics. Arjuna's reasons not to fight, because Arjuna gave four reasons not to fight, and these four reasons we are going to discuss now. Okay. So this is the overview at a glance. This is a overview of the first chapter of Bhagavad Gita. So firstly, in the first verse, this is written first and second to 11. So these are the verses. So in the very first verse, Dhritarashtra's inquiry to Sanjay, this was important, and it is said that Dhritarashtra, as we know that he was blind, and वो जो है जो कौरव थे, मतलब जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, और जो पांडु के पुत्र थे, पांडव, उनमें पार्शल थे, पार्शल टू हिज सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु. So that we are going to discuss in the first verse. And then in second to 11, it is described that Duryodhana's fear and diplomacy in describing the armies. So, he compares both the armies, and by saying that he shares his, or he confronts his diplomacy, his mental, strategy to all the Kauravas. And in 12 to 19, it is described the glowing of consuls, the signs of victory. So there are names of all the consuls of Pandavas, which we are going to discuss. And from 20 to 27 verse, Arjuna observes the army. Arjuna requests Krishna to उनको बीच में मतलब लेके जाए, दोनों आर्मी के बीच में, ताकि दोनों आर्मी को देख पाए कि कौन मेरे सामने है लड़ने के लिए. और फिर 28 to 46 अर्जुना जो है वो 4 रीजंस देते हैं जो कृष्ण को वो बताते हैं जिससे कि वो फाइट नहीं करना चाहते हैं. एंड इन 28 to 46 he gives 4 reasons. Okay. So now we are going to discuss the first verse. That is, please recite after me. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय. So this is the only verse which is spoken by Dhritarashtra. He says, Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta. So on this battlefield of Dharmakshetra and Kurukshetra, which is empowered by Dharma and Kurukshetra. So on this battlefield of Kurukshetra, Mamaka Pandavascheva Kimakurvata Sanjaya. My sons and the sons of पांडु के बेटे और मेरे जो पुत्र है उन्होंने क्या किया. तो हम इसमें एक चीज देख सकते हैं कि आप यू शुड अंडरस्टैंड कि इधर धृतराष्ट्र इज सेइंग दैट धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र. व्हाई इज इट धर्म क्षेत्र? So we are going to discuss now that why he started the verse with Dharma Kshetra. So he started this because Kurukshetra was the भूमि of Dharma, है ना. वो धर्म जो भूमि थी वो धर्म से इन्फ्लुएंस थी. And he says he differentiates the sons of Pandu and his own sons. So there are some questions that can be arised here, that why does that verse begins with धृतराष्ट्र उवाच. मतलब भगवत गीता तो भगवान की मतलब भगवान से बोली गई है ना, भगवान का सॉन्ग है. तो फिर धृतराष्ट्र ने क्यों सबसे पहला वर्ष बोला?
धृतराष्ट्र तो एक ही वर्ष पूरा एक ही वर्ष बोला, और वो भी एकदम शुरुआत वाला. So this question can be answered in this way, that any story or any great incident which is going to happen needs a setting scene. तो ये जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो एक सेटिंग सीन है, मतलब उसको देखना चाहते हैं कि भगवत गीता जो इतना बड़ा हिस्ट्री अभी होने वाला है, जो भगवान उपदेश देने वाला है, तो उसके लिए अभी एक स्टोरी एक सेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई कृष्ण जो है उपदेश करेंगे, है ना. सो दिस इज द आंसर. एंड द second question is that generally arise, that why is the question किम कुर्वत संजय asked even though Pandavas are already present on the battlefield. तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी ना. जैसे अभी हमारे पास जैसे खाने की प्लेट सामने रखी हुई है, ठीक है, और फिर कोई आपसे पूछता है कि आप अभी क्या करोगे इसका, तो ऑफकोर्स हम खाएंगे ना. इसको खाने की प्लेट हमें सामने रखी हुई है, तो ऑफकोर्स उसको खाएंगे, उसका क्या करेंगे हम. तो सिमिलरली इधर हमको सोचना चाहिए कि धृतराष्ट्र ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है कि वो लोग जो पांडवस है और कौरवस है वो बैटलफील्ड में है, तो धृतराष्ट्र ये क्यों पूछ रहे हैं कि वो लोग युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं. युद्ध भूमि में तो फाइट ही करेंगे ना. तो इसलिए देर आर several reasons to it. There are 4 reasons that describes the answer of this, that he was desirous that his sons get the kingdom, है ना. तो वो एक्चुअली बहुत एंशियस था, बहुत डिजायरस था कि उन्हीं के बेटे को जो है किंगडम मिले, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म भूमि थी. तो इट ओनली सपोर्टेड द विक्ट्री ऑफ धर्म, विच वर ऑन द पार्ट ऑफ धर्म. पांडव धर्म के साइड थे ना. तो धर्म जो कुरुक्षेत्र था वो यही उसका उस भूमि का इन्फ्लुएंस था कि जैसे जो धर्म के साइड है वही उनकी विक्ट्री हो. ओके. एंड in the second point it is described, in the second point it is described that doubtful of the possibility of his son's victory. So he was actually very anxious and doubtful because he knew that Krishna was on the side of Pandavas, and he very well knew that वो उनके जो कौरवस है वो अधर्म के साइड है और पांडव जो है धर्म के साइड है. इसलिए उसको उनको पता था कि धर्म की हमेशा जय होती है. तो इसलिए he was anxious. And the third point is he was fearful because the holy place Kurukshetra might influence his sons to compromise. Now this is the point, because by the influence of this dharma bhumi, the minds of um, his sons would compromise not to fight. Okay. And the fourth is he was very hopeful that under the holy influence of the the Pandavas may renounce their claim to avoid bloodshed. तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि जो है पांडवस जो धर्म के साइड है, तो इसलिए वो लोग ऐसा हो सकते हैं कि ये सब युद्ध वुद्ध क्यों करना है, मैं सब बहुत लोग मरेंगे इसमें, तो इसलिए ऐसी कौरवों को किंगडम दे देंगे कि आप ले लो, मुझे कोई मुझे ये सब इतना फाइट नहीं करना, मुझे लोगों को मारना नहीं है. तो ऐसे ही अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ होली पिलग्रिमेज कुरुक्षेत्र वो लोग पांडवस जो है वो दे दे. तो ही वॉज होपफुल फॉर इट, तो चाहता था कि ऐसे हो जाए ताकि मुझे बिना फाइट के, बिना मेरे सन्स के डेथ के मुझे किंगडम मिल जाए. ओके. सो दिस इज द सेकंड एंड थर्ड वर्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस. प्लीज रिसाइड आफ्टर मी. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. ओके. दृष्ट्वा तु पांडवानीकम. सो संजय जो है वो, उनको एक शक्ति है, व्यासदेव ने उनको एक शक्ति दी है कि वो दूर से ही सब देख सकते हैं. मतलब वो धृतराष्ट्र के भवन में बैठे हुए और वो कुरुक्षेत्र में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है उधर, कैसे फाइट चल रही है. तो उन्होंने देखा कि दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा. जो दुर्योधन है, by seeing the army of Pandavas, he went to
हिज आचार्य हु इज द्रोणाचार्य, है ना, आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। सो राजा इज रिफर्ड टू द्रोणाचार्य, sorry, Duryodhan. So Duryodhan approaching his uh, acharya abravit, he said the following: पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। So he told to his acharya that, see, all the army of Pandavas which is arranged by Drishtadyumna, है ना, जो धृष्टद्युम्न ने पूरी आर्मी इतनी अच्छी तरह से अरेंज की है, तो ही यू नो वो एक्चुअली टॉन्ट मार रहे हैं द्रोणाचार्य को कि क्या हुआ था कि जब धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था, तो उनका जन्म ही धृष्टद्युम्न का जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि द्रोणाचार्य के डेथ हो, मतलब द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। तो इसलिए तब भी ये सोचकर भी द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को आर्चरी और युद्ध, मतलब ये सब फाइट करने की जो कला होती है वो सब सिखाई। उनको पता था कि ये बड़े होके मुझे मारने वाला है, तो भी उन्होंने ये सिखाया। तो इसलिए उनको दुर्योधन जो है वो डिप्लोमेटिक बात कर रहा है इधर कि देखिए आपके जो धृष्टद्युम्न है, जो आपका शिष्य है और जो आपको मारने वाला है, उसने देखिए कितनी अच्छी आर्मी आपके सामने खड़ी की। ओके, so this was spoken by Duryodhan in the second and third verse, and from 1.3 to 6 he Duryodhan compares Pandava's army to Duryodhan's army. So he says that, you know, we have Bhima, sorry, we have Bhishma, and the Pandavas have Bhima. So Bhima is incapable. भीमा तो अभी यंग है, भीष्म भीष्म पितामह तो कितने ओल्ड है और कितने एक्सपीरियंस्ड है आर्चरी वगैरह में। सो वी हैव भीष्म हु इज वेरी कैपेबल, एंड उनके पास अर्जुन है, हमारे पास द्रोणाचार्य है, फिर विराट है उनके पास, हमारे पास कर्ण है। तो ही वाज कंपेयरिंग, है ना, फिर उनके पास अभिमन्यु है, हमारे पास अश्वत्थामा है। सो ही वाज कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ टू ग्रेट आर्मीज। ओके, so this is very famous. He specifically compares Bhishma and Bhima. Aparyaptam tadasmakam balam Bhima bhirakshitam पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमा भिरक्षितम, कि भीष्म is capable and Bhima is incapable. He says that. Okay. So now after this comparison, this diplomatic talk, भीष्मदेव blew his conch shell. भीष्मदेव ने अपना शंख बजाया और दुर्योधन को इससे इंडिकेट किया कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उत्साह तो दे रहा हूं, मैं अपने आर्मी को उत्साह देने के लिए मैंने शंख तो बजा लिया, बट द विक्ट्री इज ऑन पांडवस साइड। ये तो बता दिया उन्होंने, है ना, विक्ट्री जो है वो पांडवस के साइड ही है। दिस वाज द इंडिकेशन, बट दुर्योधन डिड नॉट अंडरस्टैंड। ओके, सो देन in this verse the name of consuls of all the Pandavas is described. So first of all, Krishna's transcendental consul is Panchajanya. So this you should note, है ना, this you should note in your notes, in your notebook. And Lord Krishna's, तो भगवान का शंख का क्या नाम है? पांचजन्य। एंड अर्जुन का शंख का क्या नाम है? देवदत्त। ब्रिकोदर, दैट इज भीम। भीम का है पौंड्र, और युधिष्ठिर का है अनंत विजय, एंड नकुल हैज सुघोष, सहदेव हैज मणिपुष्पक। So these are the very transcendental, they have Sanskrit names, they have also names. So these are the transcendental names of all the consuls of Pandavas and Lord Krishna. So after all the Pandavas blew their consul, so when जब कौरवों ने बजाया तब तो पांडवों को कुछ नहीं हुआ, बट जब पांडवों ने बजाया then the following verses describe. सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. Okay. So by the blowing of conch shell by the Pandavas, the blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. तो जब कौरवों ने बजाया तब तो कुछ नहीं हुआ, बट जब पांडवों ने बजाया तुमुलोऽभ्यनुनादयन्, देयर वाज द अकरेंस ऑफ tumultuous साउंड, है ना. इट shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. जो धृतराष्ट्र के बेटे थे उनके पूरा उनको डर लगने लगा ये साउंड सुन के, क्योंकि व्हाट इट वाज विक्टोरियस, है ना. ये जो साउंड है, इट इंडिकेटेड द विक्ट्री ऑफ पांडवस, द स्ट्रेंथ, है ना. फिर ये सब जब शंख बजाया, यू नो, इट इज लाइक अ स्टोरी. सबसे पहले धृतराष्ट्र ने इंक्वायरी की, तब संजय को जो शक्ति थी जिससे वो देख सकते थे कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि वो दुर्योधन के पास गए. दुर्योधन ने मतलब डिप्लोमेटिक बात की, और उन्होंने पूछा कि देखिए आपका धृतराष्ट्र का सॉरी धृष्टद्युम्न की आर्मी को देखिए कितना अच्छा अरेंज किया है आपके शिष्य ने, है ना. तो उसने डिप्लोमेटिक बात की. फिर दोनों ने शंख बजाया, और शंख बजाने से क्या हुआ, कौरवों को जो है डर लगने लगा, बिकॉज because the victory is always on the side of Krishna. This is also described in the last verse, in the very last verse of Bhagavad Gita. That is, Yatra Yogeshwara Krishna Yatra Partho Dhanurdharah Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruvani Tirmatir Mama. Yatra Yogeshwara Krishna Yatra Partho Dhanurdharah Tatra Shri Vijayo. On the side of Krishna, where there is Krishna and Arjuna, there is always Shri and Vijay. There is always victory on that side. Okay. So then जब शंख बजाया, फिर उन लोगों को पता चला. देन अर्जुन ने बोला कि अरे लेट मी सी द ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द आर्मीज. सो मुझे बीच में लेके जाइए कृष्णा, मुझे कृपया बीच में लेके जाइए, ताकि मैं दोनों आर्मीज की स्ट्रेंथ देख सकूं, है ना, और मेरे साथ कौन युद्ध करने आया है. So Arjuna sees his relatives. It is described in the Bhagavad Gita as जो फादर से उनको बोले भूरिश्रवा, ग्रैंडफादर्स भीष्म सोमदत्त, ये सब उनके रिलेटिव्स के नाम है. एंड टीचर्स आर द्रोणाचार्य कृपाचार्य, अंकल्स आर शैल्य शकुनी, ब्रदर्स दुर्योधन विकर्म विकर्ण, एंड फादर्स इन लॉ ध्रुपद, वेल विशर्स कृतवर्मा, है ना. कृतवर्मा एक्चुअली कृतवर्मा वॉज अ यादव. कृतवर्मा एक्चुअली जो है वो आई थिंक कृष्ण जो कृष्ण जिस यदुवंश में पैदा हुए हैं, जन्म लिया उन्होंने, तो उसी वंश से आते हैं कृतवर्मा. सो ही वाज अ वेल विशर. सो ऑल द हिज रिलेटिव्स एंड वेल विशर्स on all the well wishing persons were on his opposite side. सो वी शुड इमेजिन कि मतलब हमारे जो भी अच्छे करने वाले लोग हैं वो तो अपोजिट साइड में ही है, एंड उन्हीं को हमको मारना है, उन्हीं उनसे को हमको युद्ध करना है, हमको उनके डिफाई करना है हमको. ओके. एंड दे विल ऑल्सो ट्राई टू किल अस. ऐसा नहीं है कि वो लोग छोड़ देंगे. दे विल ऑल्सो ट्राई टू किल अस, विल नॉट स्पेयर अस. ओके. सो सो हियर it is described that the question may arise that why Krishna instructed to kill, है ना. is killing bad. हमको मतलब ऐसे नॉर्मल सेंस में बोलेंगे, यदि हम नॉर्मल सेंस में भी बोलते हैं कि इसको मार दिया, तो हमको ऐसा लगता है तो गलत काम, मतलब नहीं करना चाहिए सर. सो इज किलिंग बैड. फिर कृष्णा क्यों कर रहे हैं इसको, भगवान क्यों बोल रहे हैं कि मारो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, युद्धस्व विगत ज्वर, है ना. अर्जुन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि you you directly fight. He is directly instructing that you fight, है ना. तो इसलिए there are three reasons that Kauravas had done many sinful activities और अधर्मा. उन्होंने द्रौपदी का अपहरण किया था, उन्होंने जुआ में हराया था कपट से, है ना. और फिर उन्होंने कपट से द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा था ना. they had done unlimited sinful activities and unlimited अधर्मा. तो इसलिए
इन लोगों को मारना जो है वो एकदम इंपॉर्टेंट, और इट वॉज नेसेसरी, है ना। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट अ क्षत्रिय शुड फाइट, रूल एंड पनिश, है ना। अब अर्जुन है जो एक क्षत्रिय है, वो बोलेंगे मैं संन्यास लेके चला जाऊं और मैं धर्म के लिए युद्ध ना करूं, तो कैसा लगेगा। कोई ब्राह्मण बोलेगा मुझे मुझे फाइट करना है, कोई क्षत्रिय बोलेगा मुझे तो संन्यास लेके चले जाना है, मैं नहीं करूंगा ये सब, तो कैसे लगेगा। अ क्षत्रिय इज मेंट टू फाइट, रूल एंड पनिश, पनिश हु हैज डन अधर्म, है ना। तो इसलिए कृष्ण ने बोला कि अर्जुना, योर धर्म इज टू फाइट, रूल एंड पनिश, है ना। दैट्स व्हाई यू हैव टू किल these Kauravas because they are not गिविंग यू टू रूल, है ना। पांडवल ने बोला कि प्लीज मुझे सिर्फ, दुर्योधन से मांगा था कि सिर्फ 5 गांव दे दो मुझे, यू नो। ये जो पांडव थे वो तो बहुत बड़े क्षत्रिय थे, उनके लिए 5 गांव तो कुछ भी नहीं है। मतलब 5 गांव तो दे आर नॉट मतलब लायबल, है ना, बिल्कुल भी उनके लिए 5 गांव, उनके उनके मतलब जितना उनका शौर्य है उसके वजह से इतना तो वो लायबल है ही नहीं। बट दुर्योधन ने बोला कि मैं एक सुई की नोक में जितना जो, जिससे धागा डालते उतना भी मैं जमीन नहीं दूंगा, उतना एरिया भी नहीं दूंगा मैं, सोचो। तो इसलिए अब क्षत्रिय जो है वो रूल करने के लिए बना है, वो उसको उसका मेंटालिटी कि वो रूल करेगा। तो यदि आप उसको नहीं दोगे तो ही हैज टू फाइट, है ना, हु इज डूइंग अधर्म टू हिम। ओके, एंड द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कृष्ण इंस्ट्रक्टेड टू फाइट, है ना। जब कृष्ण ने ही बोल दिया, भगवान द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हिमसेल्फ सेड अर्जुना टू फाइट, then there is no need to आर्ग्यूमेंट, कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ आर्ग्यूमेंट करने की उसमें। भगवान ने सीधा बोल दिया कि फाइट करना ही, तो खत्म हो गई बात, है ना। तो इसलिए Prabhupada has also shown us that whatever has Krishna instructed, we should follow as it is. Okay. So that's why Krishna, जब Lord Krishna instruct किए कि you have to fight, then Arjuna decided to fight. Okay. And then related to this, there is a wonderful story. The power of whatever Krishna does is good for us. तो once there was a king, एक एक राजा थे, और उनका एक मंत्री भी था, ठीक है। और वो एक दिन ऐसे ही, मतलब फॉर रिक्रिएशन, फॉर ऐसे ही जंगल में पिकनिक जैसा बनाने के लिए, दे वेंट टू अलोंग विद हिज मिनिस्टर्स एंड आर्मी, दे वो जंगल में गए, ठीक है। और जंगल में जब गए, सो while he was hunting, his this his little finger was cut, ये वाली जो उंगली है वो कट गई, ये वाली। तो इसके तो क्या हुआ कि उनके जो मंत्री थे उन्होंने बोला कि जो भी होता है भगवान की इच्छा से ही होता है, मतलब जो भी होता है वो भगवान अच्छा ही करते हैं उसको, है ना, सब अच्छे के लिए ही होता है ना। तो राजा सोचे कि क्या बोल रहा है ये, मतलब क्या हो गया इसको, ऐसे क्यों बोल रहा है, मैं तो मतलब मेरे अहित में क्यों बोल रहा है, मेरे उंगली कट गई और बोल रहा है अच्छे के लिए हुआ है, ये कैसे अच्छे के लिए हुआ। तो क्या हुआ कि राजा को बहुत गुस्सा आया, तो वो बोला कि ये मंत्री को इम्प्रेशन कर दो, ये मुझे मतलब परेशान कर रहा है ये, तो इसको इम्प्रेशन कर दो, इसको जेल में डाल दो। तो फिर नेक्स्ट दिन क्या, वही लोग वापस से पिकनिक करे गए ऐसी कुछ मंत्रियों के साथ। एंड क्या हुआ पता है, एक ट्राइबल एरिया था, ट्राइबल लोग थे जो जंगली, जो जंगल में रहते हैं ऐसे। तो वो लोग को एक्चुअली काली माता जो होती है उनके लिए मतलब एक चढ़ावा चाहिए था उनको, ऑफर करने के लिए एक इंसान चाहिए था जो काट के काली माता को ऑफर करेंगे उस व्यक्ति को। तो उन्होंने राजा को पकड़ा कि राजा राजा को पकड़ा कि इसको काट के हम काली माता को ऑफर करेंगे। तो जब जब एक जो ट्राइबल पीपल था तो उसने देखा कि इसकी उंगली कटी हुई है, इसकी ये वाली उंगली कटी हुई है, तो उसने अपने मास्टर को बोला कि इसकी तो एक उंगली कटी हुई है, हम इसको ऑफर नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि देर वॉज अ रिक्वायरमेंट दैट अ हेल्दी पर्सन, एक हमको हेल्दी पर्सन ही चाहिए, एकदम पूरा कंप्लीट एक पर्सन, हेल्दी पर्सन ही चाहिए। तो इसकी तो उंगली कटी हुई है, ही इज नॉट क्वालिफाइड, तो उसको छोड़ दिया, है ना, उसको छोड़ दिया और बाकी लोग को बाकी कुछ लोग को ले गए, है ना।
तो तब उसको समझ में आया कि वो जो मंत्री है वो ऐसा क्यों बोल रहा था कि सब अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि यदि उसकी उंगली होती तो वो तो मर जाता, है ना, वो तो मर जाता। तो इसलिए वो मंत्री बोला कि सब अच्छे के लिए होता है। तो वो फिर नेक्स्ट दिन गया और राजा ने जो है उसको, जो उसका मंत्री था उसको निकाल दिया, और वो उसने माफी मांगी कि मैं समझ गया ऐसा क्यों, अ, ऐसा अच्छे के लिए ही हुआ है। और फिर जब, पर उसने एक और क्वेश्चन पूछा मंत्री से कि फिर चलो मेरे साथ तो चलो अच्छे के लिए हुआ कि मतलब मेरी जान नहीं गई, बट अब जो मैंने तुम्हारे साथ किया, जो मतलब मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया, तो ये भी अच्छे के लिए हुआ है। ये जो मैंने जेल में डाल दिया तुमको, जो सफरिंग हुई वो भी अच्छे के लिए हुआ है, वो भी, उसमें क्या अच्छा है, उसमें तो कोई अच्छा नहीं है। तो उसने बोला, मंत्री ने बोला कि आप सोच सकते हो कि यदि मैं इस जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ जाता जंगल में, है ना, यदि मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ जाता जंगल, और मैं, मेरे में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, मेरे, मैं तो कंप्लीट बॉडी है, मेरा कोई ऐसा कुछ कटा वटा ऐसा कुछ नहीं है, हेल्दी पर्सन हूं मैं। तो यदि मैं जंगल में जाता तो लोग आपको तो छोड़ देते वो लोग, बट मुझे तो ले लेते ना। तो इसलिए मैं अच्छे के लिए हुआ, और मैं जेल में था इसलिए, है ना। तो इसलिए सब अच्छे के लिए होता है, दिस एंड एवरीथिंग इज प्रोग्राम एंड डन बाय लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ, है ना। सो दैट्स व्हाई व्हेन कृष्ण इंस्ट्रक्टेड टू अर्जुन टू फाइट, तो दिस वाज फॉर हिज ओन गुड, है ना, अच्छे के लिए था वो। ओके। सो जब ये हुआ, जब बीच में लेके गए कृष्ण अर्जुन, अर्जुन ने देखा कि मेरे रिलेटिव्स है अपोजिट साइड में। सो द फॉलोइंग वर्स ही सेड, दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। ओके, so by seeing his relatives, these nine uh, problems was shown in his body. The first was the first was limbs quivering. उनके जो आर्म्स पैर ये सब जो थे वो शेक, मतलब हिलने लग गए, और जो मुंह था वो ड्राई होने लग गया, और जो उनका बॉडी है पूरा हिलने लग गया, और जो उनका बाल थे वो मतलब एक एंड पे खड़े हो गए, है ना। एंड वो स्लिपिंग, जो उनका धनुष था वो उनके हाथ से गिरने लगा, मतलब शेक हो रहे थे ना। और फिर स्किन बर्निंग, उनको एक बर्निंग सेंसेशन आने लगा, फिर खड़े नहीं हो पा रहे थे। एंड मिसफॉर्चून, ही कैन, यू कुड सी हिज मिसफॉर्चून के सामने मेरे रिलेटिव्स खड़े हुए और इनको मारना है मुझे। सो दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण, बाय सीइंग ऑल द स्वजनम, दैट इज हिज रिलेटिव्स, है ना, दीज फॉलोइंग प्रॉब्लम्स was shown in his body. Okay, so now we are going to, so the first reason that Krishna, sorry, that Arjuna gave to Krishna not to fight was that compassion, है ना, compassion towards living entities. Daya, daya is the, daya comes in the four pillars of dharma, है ना। Compassion to any living entity इज धर्म, है ना। तो इसलिए ये तो वो अर्जुन बोल रहे हैं कि ये तो मेरे रिलेटिव्स हैं, ये तो मेरे स्वजन है, इनको इनमें मैं दया नहीं दिखाऊंगा तो मैं किस पे दया दिखाऊंगा। होना तो सब पे, सारे लिविंग एंटिटी पे दया होना चाहिए, बट ये तो मेरे रिलेटिव्स है, इन पे दया नहीं दिखाऊंगा तो किस पे दिखाऊंगा मैं। तो दिस वॉज द फर्स्ट रीजन ही गेव, एंड द सेकेंड वॉज नो एंजॉयमेंट। सो इन 1.31 to 35 he describes that यदि, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि मैं सबको मार दूंगा तो मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा, सब तो मर जाएंगे। मैं मतलब किसके साथ एंजॉय करूं, मेरी फैमिली मर जाएगी, सारे मेरे जो रिलेटिव्स वही मर जाएंगे, तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा इस किंगडम में अकेले अकेले। मैं मतलब इतना बड़ा जो मेरा राज्य है उसमें अकेले घूमता रहूंगा ऐसे, है ना, उसमें तो कोई मतलब नो एंजॉयमेंट, है ना। तो दिस वॉज द सेकेंड, दिस वॉज द सेकेंड रीजन ही गेव। एंड द थर्ड वॉज फियर ऑफ सिन। by killing thousands of people, उनको बहुत सिंफुल एक्टिविटी
झेलनी पड़ती है ना. दिस वाज अ सिंफुल एक्टिविटी टू किल thousands of people. Now, so this was the third reason. Sin in killing is aggressors. Greedy men see no fault in killing relatives, but we do. है ना. तो जो ग्रीडी मैन होते हैं, क्योंकि अर्जुन ऐसा सोच रहे थे कि जो मुझे राज्य लेना है इसलिए मैं इन लोगों को मार रहा हूँ, है ना. मुझे सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए मुझे इन लोगों को मारना पड़ रहा है, अपने रिलेटिव्स को. वो भी कितनी मतलब घिनौनी बात हो गई है. और उसके बाद फोर्थ रीजन इज इफेक्ट्स ऑफ फैमिली डिस्ट्रक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. जब मैं इन लोगों को पूरे इन लोगों को मार दूंगा, तो कोई भी एल्डरली पीपल नहीं बचेंगे जो पूरे फैमिली को मतलब डायनेस्टी बढ़ा सकते हैं, है ना. और उससे क्या होगा, इररिलीजियन इंक्रीजेस. उससे अधर्म पैदा होगा पूरे डायनेस्टी में. जो 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 डायनेस्टी चल रही है, परंपरा, उसमें अधर्म पैदा होगा, अधर्म इंक्रीज होगा. और उससे क्या होगा, जो वुमेन है ना, जो स्त्री, जो अ, माता वगैरह होगी, वो स्पॉइल हो जाएगी. और उससे वर्ण संकर प्रोजनी पैदा होगी. दैट इज अनवांटेड चिल्ड्रन पैदा होंगे, जो कि बहुत ही अधर्मी होंगे, है ना. तो उससे पूरी डायनेस्टी बिगड़ जाएगी. तो दिस वाज द रीजन ही गेव, है ना. पूरा यदि मैं एल्डरली पीपल पीपल को मार दूंगा, इधर सबको मार दूंगा, तो उससे स्त्री दूषित हो जाएगी, है ना. और उससे अनवांटेड प्रोजेनी, जो एकदम अधर्मी बच्चे हैं और जो वही आगे जाके रूल करेंगे, तो अधर्मी पूरा राज्य हो जाएगा आगे जाके. दिस वाज द फोर्थ रीजन. So this is given in the summary, that first is compassion, second is no enjoyment, na, he could not enjoy without his family, है ना. And third is fear of sin, he has to kill thousands of people, crores of people. And fourth is destruction of family traditions. Okay, so now we are going to discuss the last verse of this chapter, that is Sanjaya uvacha eva muktvarjuna sankhye rathopastha upavishat विसृज्य सशरम चापम शोकसं विघ्नमानसः. Okay, so the last verse says that Sanjay Uvacha, Arjuna having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. तो अर्जुन जो है वो सब छोड़ दिया और जो रथ पे ही बैठ गए, है ना. हिज माइंड ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, क्योंकि वो इतना कंफ्यूजन में हो गए. उन्होंने चार इतने वैलिड रीजंस दिए फाइट नहीं करने के, तुमको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इतने अच्छे रीजंस है मेरे पास नहीं फाइट नहीं करने के लिए. ओके, सो ही वाज ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस the solutions to all these four reasons that Arjuna gave in the second, third, all the other 17 chapters of Bhagavad Gita, and all these four reasons that four questions, four challenges that he gave to Krishna. Lord Krishna will answer that.